Today's our topic is system development life cycle. System development life cycle is SDLC. SDLC. System development life cycle is the creation of a new system or modification of an old system. SDLC means in which the older system are modified or some modification or technical changes has been done to meet the user requirement. It is the process of modifying old system to add or delete the functions of the system. SDLC is the overall process of developing information system through a multi-step processing from investigation of initial requirements through analysis, design, implementation, and maintenance. It is the overall process of developing information system by using the multi-step process from investing of initial requirement through analysis, design, and implementation and maintenance. All these things are done to modify the system to meet the daily needs of requirement of the user. STLC का मतलब क्या है कि जो बदलाव करने का जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है उसमें बदलाव लाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं, उन्हें हम STLC कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके जिन्हें अपना कर हम सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं, जिससे यूज़र की जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हम उनको चाहिए, जो चीज़ें किसी फंक्शन को डिलीट करना हुआ और या किसी चीज़ को किसी फंक्शन को ऐड करना हुआ, उसके हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और उसे के यूज़ में लाते हैं, जिससे जो वर्क है वो पूरा हो सके और रिक्वायरमेंट जो चीज़ें चाहिए, जो फंक्शन चाहिए उस काम को करने के लिए वो हमें मिल सके। इसलिए STLC का यूज़ किया जाता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पुराने सिस्टम को मॉडिफाई करके, बदल के, उसमें कुछ चेंजेस लाके, बदलाव लाके उसे मॉडिफाई करके उसे एक नया सिस्टम जैसा बनाया जाता है जो हमारे नए रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। कुछ स्टेप्स हैं, फेजेस हैं, जिनको फॉलो करके सिस्टम को मॉडिफाई किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप इज requirement determination. In the first stage, requirement determination. In this first stage of design, needs or requirement of the organization are specified or determined. Requirements are arrived at by sequence reached among manager in the organization. जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं, जो हमें फंक्शन चाहिए होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, वो हम मैनेजर से जाके उस फर्स्ट स्टेज में उसको डिस्कस करते हैं। पहले उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, उसको उसका डिज़ाइन डिस्कस करते हैं मैनेजर से। Now the second step is the requirement specification, initial or through specification. In the second stage, after discussing with the manager and user, the system analyst draws up the specification of user requirement by concerning an understandable language, so what will be the system output.
जब आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेज, जब फर्स्ट स्टेज पूरा हो जाता है, जो डिस्कशन हमारा रहता है मैनेजर के और सिस्टम एनालिसिस्ट के, जो सिस्टम को मॉडिफाई करता है उसके बीच जब डिस्कशन हो जाता है, तो सेकेंड स्टेप में उन सारी चीज़ों को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, जिस जो अंडरस्टेबल हो, जो यूज़र अंडरस्टैंड कर सके, मैनेजर अंडरस्टैंड कर सके उसको, वो सेकेंड स्टेज में हमारा उस सारी स्पेसिफिकेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है उनको एक नॉर्मल आउटपुट में उसको रिटर्न करके उसे दिखाया जाता है, जिससे मैनेजर को पता चलता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं और इसका आउटपुट ऐसा होगा। नाउ द थर्ड स्टेज इज feasibility analysis. Feasibility analysis is the stage in which a raw figure is drawn. The next step is to check whether it is feasible to implement the system. A feasibility study takes into account variation, concentrate the resources needed for implementation, such as computing equipment, manpower, and cost are estimated based on the specification of the user requirement. The feasibility report is also given to the management of the organization. In the third stage, we manage the financial things, what the requirement, what the things are required to modify the system, that are all are included in the feasibility system. They analyze the investment, manpower, the equipment which are needed to modify the system, the drawn of the specification. They also check the implementation of the drawn figure. This all it, and the whole report of the system analyst which was analyzed by the system analysis are sent to the manager to check whether this specification which are required to meet the system modification that are included in that report, which is sent to the manager. Now the fourth is a final specification. After taking the report of feasibility analysis, the manager will see the how the system modification um, take the requirement, or what the things are required to modify the system. The manager studies this feasibility report and suggests modification in the requirements, if any, according to the suggestion. System analysis drawn of the final specification of the system. This specification should be in the form which can easily understood by the user. फाइनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि जब feasibility रिपोर्ट सिस्टम एनालिसिस सबमिट कर देता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए और ये चीज़ें हमें अगर मॉडिफिकेशन में लगाएंगे तो इसका इतना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लगेंगी सिस्टम को मॉडिफाई करने में। और जब उसकी रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो मैनेजमेंट जो रहता है, जो कंपनी का मैनेजमेंट रहता है, वो उस रिपोर्ट को देखता है कि जो रिपोर्ट है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे अंडर में आ रहा है कि नहीं, हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं। उसके वो देखने के बाद, जो सारी रिपोर्ट देखने के बाद एक लास्ट इस फिगर स्पेसिफिकेशन ड्रॉ किया जाता है, जिसमें क्या रहता है कि जो सिस्टम एनालिसिस्ट रहता है वो क्या करता है कि वो लास्ट फिगर ड्रॉ करता है, जिसको यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कि मतलब सिस्टम ऐसा दिखेगा हमारा और ऐसे मॉडिफिकेशंस होंगे, उसके आउटपुट ये होंगे। एक ईजीएस्ट लैंग्वेज में लिख दिया जाता है उसको। नाउ द फिफ्थ स्टेज इज सिस्टम डिज़ाइन डेवलपमेंट. The next step is to develop the logical design of the system. In this,
The logical of the programmer is design, database are designed and program, test plan and implementation plan are drawn up. सिस्टम डिज़ाइन में क्या होता है कि अब उस फाइनल स्पेसिफिकेशन के बाद आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द मैनेजमेंट system analysis draws the figure they started to design or develop the specific system. They started to modifying the system in a particular language. They 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 give the logical shape of the design. They develop the system, they create the database, they design the program, they made a test plan and implementation plan. They also design the program. सिस्टम डिज़ाइन में क्या होता है कि जब फाइनल स्पेसिफिकेशन जब हमारा रेडी हो जाता है, उसके बाद उसमें क्या होता है कि जब उसको रेडी किया जाता है तो सिस्टम एनालिसिस क्या करता है, जो डेवलपर होता है हमारा, वो सिस्टम को डिज़ाइन करना शुरू कर देता है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको लिखता है, उसके प्लान्स लिखता है, उसके प्रोग्राम कोड्स ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी लिखा है कि ऐसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे सारी चीज़ें करेंगे। जब वो सारी चीज़ें कर दी जाती हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। In this phase, program are written, database is created and user are trained, system are installed and tested with operational data. उसमें क्या होता है कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में प्रोग्राम को रिटर्न कर दिया जाता है, उसको एक सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है और यूज़र को ट्रेन कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए कि वो सिस्टम को यूज़ करने के लिए रेडी है, वो सिस्टम को यूज़ कर सकता है। अब सेवेंथ स्टेज है सिस्टम इवैल्यूएशन। सिस्टम इवैल्यूएशन मीन्स after implementing the system, it is evaluating, finding out from a user if the system meets their needs and the plan for its improvement are drawn. Evaluation report with a suggestion for improvement is prepared. सिस्टम इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जब सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, जब यूज़र को ट्रेन कर दिया जाता है, यूज़र को सिस्टम यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है कि लो यूज़ करो, और उसका फीडबैक जो रहता है वो सिस्टम इवैल्यूएशन में उसको कलेक्ट किया जाता है। अगर कुछ और भी उसमें मॉडिफाई करना हो तो उसको किया जाता है, उससे रिपोर्ट बनाया जाता है, फिर उसको अगेन इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद जब यूज़र फ्रेंडली हो जाता है इन्वायरमेंट, जब यूज़र यूज़ कर लेते हैं, जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है उसमें, जब सिस्टम इवैल्यूएशन पूरा हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा 8th स्टेप, सिस्टम मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। जब सिस्टम इवैल्यूएशन हो जाता है, जब हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ें और फीडबैक्स के ज़रिए जो हमारी कमी होती है, जो सिस्टम में कुछ छूट जाता है, वो सारी चीज़ें इवैल्यूएशन में हो जाती हैं। उसके बाद सिस्टम मॉडिफिकेशन मेंटेनेंस, उसके बाद फिर से सिस्टम को अपडेट किया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट जो भी मेंटेनेंस रहता है वो चेंज किया जाता है, फंक्शन को ऐड किया जाता है, फीचर को डिलीट किया जाता है, जिससे सेटिस्फाई कर सके यूज़र्स नीड को। मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस इज नेसेसरी टू एलिमिनेट एरर इन द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम में एरर है तो वो सिस्टम मॉडिफिकेशन मेंटेनेंस के ज़रिए